बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ गया। कौमी परचम तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। दोस्त नुमा दुश्मनों से बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान कर दिया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, फ़ौज पाकिस्तान से कह दिया है जो भी वसाइल चाहिए अपने अखराजात घटाकर फराम करेंगे। और खबर दें आपको, बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। मंजूर अहमद से तफसीलात जानते हैं। बताइए मंजूर। जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास के एलामिया के मुताबिक इसमें अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मी और प्रोपेगेंडे के तदारुक के लिए FIA मौसर कार्रवाई करेगी, ये फैसला किया गया है। इसी तरह चमन में पासपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए इंसाफ और सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। बलूचिस्तान में बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद अपडेट करने के लिए। आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद। इस वक्त तकरीब जारी है। सदर आफिस वली ज़रदारी इस तकरीब में शरीक हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर को इस वक्त तमग़े इम्तियाज मिलिट्रीज देने की तकरीब जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, may I have your permission to start the formal proceedings of this special investor ceremony for conferment of Nishane-e-Imtiyaz military upon General Lee Chua-min, Commander, People Liberation Army Ground Forces, People's Republic of China. Now I invite Mr. Ahsanullah Kakar for recitation from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Allah, there is no deity except Him, the ever-living, the sustainer of all existence. Neither drowsiness overtakes Him, nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with Him except by His permission? He knows what is presently before them and what will be after them, and they encompass not a thing of His knowledge except for what He wills. His throne extends over the heavens and the earth, and He is never weary of preserving them, and He is the sublime, the tremendous. Sadaqallahu al-Azim. I now request General Lee Chua-min, Commander, People Liberation Army Ground Forces, People's Republic of China, to please come forward.
Ladies and gentlemen, General Lee Chao-meng has distinguished himself as an officer of exceptional leadership, selfless dedication to service, and outstanding professional ability. During a career spanning over 4 decades, he has contributed greatly to the Chinese military through his diligence, determination, and efficiency. His steadfast loyalty, outstanding leadership, initiative, and vision brought him wide acclaim and inspired others to strive for maximum achievement. Ladies and gentlemen, during his decades-long service to the nation, General Lee Chao-meng has been known for his extraordinary professionalism, outstanding command skills, and concerted efforts for supporting and implementing peace and stability around China and in the world. As a friend of Pakistan, General Lee Chao-meng has made immense contribution to Pakistan-China military relations with unwavering commitment and dedication, which have been instrumental factors in advancement of military cooperation between the two friendly nations. His professional skills, knowledge, and leadership reflect great credit upon himself, his military, his nation, and humanity at large. Ladies and gentlemen, in recognition of his meritorious services rendered towards enhancing defense cooperation with Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer the award of Nishan-e-Imtiaz Military upon General Lee Chao-meng, Commander, People Liberation Army, Ground Forces, People's Republic of China. Now I request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiaz Military from the President of the Islamic Republic of Pakistan. Honorable President, may I have your permission to close the formal proceedings of this special investor ceremony? Ladies and gentlemen, the proceedings of this special investor ceremony are now closed. Guests are invited for refreshment. Thank you very much. चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब आप मुलाहिजा कर रहे थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जनरल ली योंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस तकरीब में शरीक थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी इस तकरीब में शरीक थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेस को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जनरल ली योंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इस तकरीब में शरीक थे। खबर देंगे आपको, हुकूमत ने अदलिया से मुताल्लिक अहम कानून साजी का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं अजहर फारूक से। बताइए अजहर। जी, हुकूमत ने यह फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए और हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने अपना बिल जो है वो जमा करा दिया है और ये बिल आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस बिल के तहत तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 23 करने की तजवीज़ दी गई है।
और जजेस की तादाद में इजाफे का बिल, जैसे कि पहले मैंने कहा है कि आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ तो 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी। एक और इंतहाई अहम तरीन कानून साजी हो रही है, वो आइन में तरमीम के हवाले से बिल है और वो निजी रुकन नूर आलम खान के जरिए ये बिल पेश किया जाएगा कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में, जो आइंदा हफ्ते होने जा रहा है। आइन के आर्टिकल 184(3) में जो है वो तरमीम तजवीज़ की गई है और इस बिल के तहत तो अगर आइन में ये तरमीम हो जाती है तो नजरसानी की अपील से मुतल्लिक ये फैसला होगा कि उससे बड़ा बेंच जो है वो नजरसानी की अपील जो है वो सुन सकेगा। इससे कबल जो है वो नजरसानी उसी बेंच के पास लगती थी, लेकिन अब ये अगर तरमीम हुई तो बड़ा बेंच सुनेगा। और इस निजी बिल के हवाले से बताया गया है कि हुकूमत भी इस बिल को अडॉप्ट करेगी, इसको सपोर्ट करेगी और ये बिल भी आइंदा हफ्ते जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आज़र फारूक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की जरूरत नहीं, ये एक SHO की मार है, जल्द इन्हें अच्छा पैगाम मिल जाएगा। कोयटा में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टुक मौक़िफ़। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, दहशतगर्द हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, कैसे पता चलेगा ये बंदा सड़क की रैकी कर रहा है कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं। उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल जागी हुई है। जो इस टाइम अप्रोच है, ये अप्रोच पहले कभी नहीं आई बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है और इनका बंदोबस्त होगा। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है, आप जो मर्जी कह लें, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, आप चप्पे पे नहीं कर सकते। हम अपनी चेक पोस्ट पे होंगे, अपने थाने में होंगे, अपने हेडक्वार्टर पे होंगे। उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। वो 53 फैमिलियाँ हमारी फैमिलीज हैं, हम उनके साथ हैं। 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी एक इंच को ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रैकी करने आ रहा है या ट्रैवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इशू शुरू हो जाते हैं। आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। सानिया मूसा खेल में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा और तदफीन पंजाब के मुख्तलिफ अजला में की जा रही है। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर, मकतूल खुदा बख्श, नज़ीर अहमद, नदीम, जिया और लैया के 2 भाइयों की तदफीन कर दी गई। लवाहिकीन का एक ही मुतालबा है कि दहशतगर्दों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कल्लात में शहीद होने वाला मोहम्मद खान नामी नौजवान, जिसे तौंसा में सपुर्द खाक कर दिया गया है। अहले खाना का कहना है FC में भर्ती के लिए जाने वाले मोहम्मद खान को कल्लात के करीब खट कूचक के मकाम पर शहीद किया गया। शहीद का जस्ते खाकी आबाई इलाके बस्ती गाड़ी लाया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद मोहम्मद खान 4 भाइयों में सबसे छोटा था। ईरानी सफारत खाने ने मूसा खेल और कल्लात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। ईरानी सफारत खाने ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, मूसा खेल में 23 शहरियों और कल्लात में 10 जवानों को शहीद किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत अवाम और मुतासर खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला शहदा की रूह को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टेफन डुजार्ट ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं, शहरियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की तर्जुमान नबीला मशाली का कहना है, बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। घोटकी में एक और सहाफ़ी को कत्ल कर दिया गया। कच्चे के डाकुओं ने उबाड़ों के नवाही इलाके रोंती में बचल घनियों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आवाज़ TV के रिपोर्टर बचल घनियों सुबह सवेरे घर के करीब खेतों में गए थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सहाफ़ी के कत्ल की शदीद मजम्मत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लेते हुए IG सिंध को कातलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का कहना है, हम आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं, मोहम्मद बचल घनियों के कातलों को गिरफ्तार करके सजा दिलवाई जाएगी। इस्लामाबाद के इलाके हुमक में मूसलाधार बारिश से जेरे तामीर इमारत की छत गिर गई। 5 मजदूर मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए।
इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। 2 मजदूरों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबे तले दबे एक मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जाम बहक मजदूरों में 4 का ताल्लुक तौनसा शरीफ और 1 का ताल्लुक कराची से था। मुल्क के बेशतर इलाके मानसून के ताकतवर स्पेल के ज़ेर असर आ गए। जेहलम में पानी घरों में दाखिल हो गया। खेवड़ा पिंड दादन खान रोड पर गाड़ियां आबी रेले में फंस गईं। चकवाल, वज़ीराबाद और सराय आलमगीर में भी बारिश से नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर डैम के स्पिलवेज आज 4 बजे खोले जाएंगे। जिला इंतजामिया का कहना है शहरी नदी नालों की जानिब जाने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इमरजेंसी की सूरत में 16 पर राब्ता करें। माल मवेशी को बर वक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया जाए। ताकतवर मानसून हवाओं का सिस्टम सिंध में तूफानी बारिशों का सबब बन रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। ठट्टा और बदीन में 400 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। सिस्टम है अभी भी हमारे एरिया से काफी दूर है। सिंध पे और कराची पे जो बारिशें हुई हैं वो उसकी पेरिफेरल आउटर पेरिफेरल इफेक्ट की वजह से हुई है। तो आगे चलकर उसकी शिद्दत में, बारिशों की शिद्दत में भी और हवाओं की शिद्दत में भी और थंडरस्टॉर्म में भी एक तरह से ज्यादा शिद्दत में इजाफा हो गया ग्रेजुअली। तो आज रात से या कल से आप कह सकते हैं कि अगले जो 3 दिन होंगे 28, 29, 30 उसमें ज्यादा शिद्दत की बारिश मुतवक्की है। कराची में अगर हम क्वांटिटी वाइज बात करें तो 150 से 200 मिलीमीटर के दरमियान जा सकती है ये रेंज कराची में बारिश की। और इसी तरह से बदीन, ठट्ठा, सुजावल वगैरह की तरफ तो मुझे डर है कि 300-400 मिलीमीटर को भी क्रॉस कर सकती है। वहाँ पूरे सिंध में मूसलाधार धुआंधार बारिशें हैं। अगले 4 से 5 तक ये सिलसिला चलेगा। कराची में बारिश का पानी ताहाल मुख्तलिफ सड़कों से साफ नहीं किया जा सका। सिंध हाई कोर्ट और पासपोर्ट ऑफिस के करीब सड़क दरिया का मंजर पेश कर रही है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा रोहा फातिमा से। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रात से सुबह तक होने वाली बारिश ने जो है वो शहर की कई सड़कें जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट की अकबी सड़क पे और यहाँ मेरे अकब में भी आप सब देख ही सकते हैं कि सिंध हाई कोर्ट की पार्किंग है और ये सड़क जो है वो इस वक्त बारिश के पानी में डूब चुकी है। सड़क पर जो है वो एक बीचों बीच एक गड़ा भी मौजूद है, लेकिन बारिश के पानी की वजह से जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बाइक्स खराब हो रही हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और इसी के साथ साथ जो है वो पैदल चलने वालों के लिए भी बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। सिंध में बारिशें। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता किया। वज़ीर आला ने DCs को अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा नशीबी इलाकों, सड़कों और रास्तों से पानी की निकासी यकीनी बनाएं। मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Golden Pearl Whitening Soap for all skin types. Love your skin. आजकल तो सब्जी वाला धनिया मिर्ची भी फ्री नहीं देता और मेरा सनलाइट दे रहा है 60% एक्स्ट्रा पाउडर। सनलाइट अब 10 रुपए में मिले और भी ज्यादा महकती सफाई। Golden Pearl Beauty Cream, बात बन जाए। हम सब बोलेंगे बूम 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 बूम, हम सब बोलेंगे बूम 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 बूम, हम सब बोलेंगे। गर्ल्स, पिज्जा हो जाए? हाँ, और उसके साथ पिंपल्स आएंगे फ्री। जैसे भी हो पिंपल, सॉल्यूशन है सिंपल। गोल्डन पर्ल प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, नीम और टी ट्री ऑयल का एंटी बैक्टीरियल और ऑयल कंट्रोल फॉर्मूला पिंपल्स और उनके स्पॉट्स को खत्म करे। गोल्डन पर्ल प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, लव योर स्किन। The perfect cornetto. हेलो है हर्बल शैम्पू, बालों को मजबूत, घना, सिल्की और शाइनी बनाए। हेलो है हर्बल शैम्पू, मेरे बालों का बेस्टी। कहाँ चला गया था यार? गुलाब लाने। गुलाब लाने? आपके बालों में कितना हसीन लगेगा, अब खुद देख लें। स्टिंग निकाल। और निकाल। स्टिंग, टेस्ट भी।
न्यू रियो डबल चॉकलेट, 2 चॉकलेट्स की डबल ट्रीट। कॉन्टेस आज ही कॉन्टेस अपने करीबी नया सवेरा स्टोर या नया सवेरा ऑनलाइन से खरीदें। सारा, फिर से ब्लीडिंग गम्स? तुम्हें चाहिए पैराडोंटेक्स, जो है आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा मौसर। वेल डन। Palmolive Naturals 100% मिल्क और रोज पेटल्स एक्सट्रैक्ट से बना, मेरी स्किन को बनाए सॉफ्ट एंड ग्लोइंग। यू कैन फील इट। इसको कहाँ, कब और कितना प्रोटेक्ट करूं? इसीलिए नेस्ले नीडो 1+, जो बच्चों के पेट, रेस्पिरेटरी और इम्यून डिफेंसेस को सपोर्ट करे, ताकि इससे मिलती रहे ट्रिपल एक्शन प्रोटेक्शन। नीडो 1+। मानो कैसी फिकर? ये जिद्दी दाग। आंटी सर्फ एक्सेल है ना? नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना। हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन मेरी स्किन को दे सॉफ्ट, स्मूथ, सैटिन टच और फ्रेग्रेंस दैट आई लव सो मच। केयर हेयर रिमूवर क्रीम एंड लोशन, केयर से बेहतर क्या। कॉन्टेस आज ही कॉन्टेस अपने करीबी नया सवेरा स्टोर या नया सवेरा ऑनलाइन से खरीदें। हेलो हेयर हर्बल शैम्पू आंवला, रीठा, सिकाकाई और ऑलिव ऑयल की खूबियां लिए। हेलो हेयर हर्बल शैम्पू, मेरे बालों का बेस्टी। न्यू रियो डबल चॉकलेट, 2 चॉकलेट्स की डबल ट्रीट। नीम और टी ट्री ऑयल का एंटीबैक्टीरियल और ऑयल कंट्रोल फॉर्मूला पिंपल्स और उनके स्पॉट्स को खत्म करे। गोल्डन पर्ल प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, लव योर स्किन। तुम्हें चाहिए पैराडोंटेक्स, जो है आम टूथपेस्ट के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा मौसर। वेल डन। वेलकम बैक। कराची की सनती एसोसिएशंस ने कल होने वाली ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सनती एसोसिएशंस का कहना है कौमी मफाद में IPPs माहितों पर नजरसानी, बिजली निर्खों में कमी की जाए। अंजुम वहाब से मजीद जानेंगे। अंजुम, आगाह कीजिएगा इस बारे में। कराची की सनती एसोसिएशन ने भी 28 अगस्त को ताजरों की IPPs के माहिदों, महंगी बिजली और ताजिर तोसी स्कीम के खिलाफ जो हड़ताल है उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के नुमाइंदों बाबर खान और फैसल का कहना था कि ये कौमी मफाद में फौरी तौर पर पैदा किया जाए कि कराची की सनती एसोसिएशंस ने कल होने वाली ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सनती एसोसिएशंस का कहना है कौमी मफाद में IPPs माहितों पर नजरसानी, बिजली निर्खों में कमी की जाए। अंजुम वहाब से मजीद जानेंगे। अंजुम, आगाह कीजिएगा इस बारे में। कराची की सनती एसोसिएशन ने भी 28 अगस्त को ताजरों की IPPs के माहिदों, महंगी बिजली और ताजिर तोसी स्कीम के खिलाफ जो हड़ताल है उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। एसोसिएशन के नुमाइंदों बाबर खान और फैसल का कहना था कि ये कौमी मफाद में फौरी तौर पर पैदा किया जाए कि IPPs के मुआवजों पर नजरसानी की जाए, महंगी बिजली से निजात दिलाया जाए, क्योंकि सनतों और कमर्शियल इदारों को काफी मुश्किलात का सामना है। पैदावारी लागत महंगी हो रही है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ताजिर तोसी स्कीम जो मुतारिफ कराई गई है, ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। FDR के चेयरमैन इस सिलसिले में फौरी तौर पर एक्शन लें और ताजिरों ठीक है अंजुम, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने 28 अगस्त को जमात इस्लामी और ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। अपने बयान में फजलुर रहमान ने कहा, कल मुल्क भर में होने वाली हड़ताल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। JUI कारकुनान पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि महंगाई ने और नाजायज टैक्स ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। उन्होंने 28 अगस्त को जमात इस्लामी और ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर किला के तीरा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR का बताना है ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज, नाम निहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल हरार के खिलाफ किए गए। अगस्त में जारी ऑपरेशंस के दौरान 25 ख्वारिज हलाक हुए, 11 जख्मी हुए हैं, ये बताना है ISPR का। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर किला के तीरा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR ने बताया है ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज, नाम निहाद
लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए हैं। अगस्त में जारी ऑपरेशन के दौरान 25 ख्वारिज हलाक, 11 जख्मी हुए हैं, ये बताना है ISPR का। लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। लेकिन बताइएगा ISPR का मजीद क्या बताना है ऑपरेशन से मुतालिक। जी खालिद, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं और फितनल ख्वारिज नाम नहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए गए हैं उसमें नुमाया कामयाबियां मिली हैं। 20 अगस्त से जो ये सिलसिला शुरू किया गया था इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का, उसके नतीजे में 25 ख्वारिज मारे गए, 11 जख्मी भी हुए हैं और जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली है, एक खारजी सरगना जो इनका अबूजर और सद्दाम है वो भी इन ऑपरेशंस के दौरान मारा गया है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के इन ऑपरेशंस में 4 सिक्योरिटी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद भी हुए हैं और साथ ही इस अंदिये का ये अंदिया भी दिया गया है कि फितनल ख्वारिज के खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियां मिल रही हैं उस यकीनी बनाते हुए दहशतगर्दों का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जी हाँ, ठीक है। लईकुर रहमान तफसीलन आगाह कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर किला के 13 में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज नाम निहात लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए। अगस्त में जारी ऑपरेशन के दौरान 25 ख्वारिज हलाक, 11 जख्मी हुए। ऑपरेशन में खारजा सरगना अबूजर उर्फ सद्दाम भी मारा गया है। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए 4 सिपाही शहीद हुए हैं। फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को नुमाया कामयाबियां मिल रही हैं। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर किला के 13 में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन फितनतुल ख्वारिज नाम नहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ किए गए।